The term equity is derived from the Latin expression equitas equus, which means leveling or equalization. इक्विटी शब्द एक लैटिन वर्ड से आया है equitas equus, जिसका अर्थ होता है समतल करना या बराबर करना. Equity implies fairness. Equity is that which level down any arbitrary preference or denial of justice. Equity का तात्पर्य निरपेक्षता से है. साम्य वो है जो किसी भी मनमानी प्राथमिकता या न्याय से इनकार को कम करता है. The term equity is used in diverse way and connotes a variety of senses. It is popular parlance. It signifies natural justice, equity and fairness. साम्य शब्द का प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है और ये विभिन्न अर्थों को दर्शाता है. साम्य शब्द का अर्थ प्रकृति का न्याय, प्रकृति के नियम, निष्पक्षता और न्याय पर आधारित अधिकार है. यह लोकप्रिय बोलचाल की भाषा में प्राकृतिक न्याय, समता या निष्पक्षता का प्रतीक है. Generally, equity is the system of law that before the fusion of law and equity affected by Judicature Act in 1873 and 1875 was administered in the Court of Chancery. आमतौर पर साम्य कानून की वह व्यवस्था है जो न्यायिक अधिनियम 1873 और 1875 द्वारा प्रभावित कानून और साम्य को संश्लेषण से पहले चांसरी के अदालत द्वारा प्रकाशित की जाती थी. In the word of Mitland, equity now is that body of rule administered by English Court of Justice, which were, if not for the operation of Judicature Acts, would administered only by those court which would be known as a court of equity. मिटलैंड के शब्दों में कहा जाए तो इक्विटी अब अंग्रेजी न्याय अदालतों द्वारा प्रशासित नियमों का वह न्यायिक है जो यदि न्यायिक अधिनियम को संचालन के लिए नहीं होता तो केवल उन अदालतों द्वारा प्रशासित होता जिन्हें साम्य के अदालत के रूप में जाना जाता है. According to Snells, equity in its technical sense may be defined as a position of natural justice, which though of such a nature as a properly to admit of being judicial enforced, was from circumstances hereinafter to be noticed, omitted and enforced by common law of court, and omission which is supplied by the court of chancery. स्नेल के अनुसार साम्य अपने तकनीकी अर्थों में इस प्राकृतिक न्याय की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, हालांकि ऐसे प्राकृत होने के बावजूद कि न्यायिक रूप से लागू होने के बाद स्वीकार किया जा सकता है. इसके बाद की परिस्थितियों में से सामान्य कानून अदालतों द्वारा नोटिस छोड़ा और लागू किया जाना था, एक चूक जो प्रदान की गई थी चांसली की अदालतों द्वारा. According to Henry Mind, equity is a body of rule existing side by side of original civil law, founded on distinct principle of claiming identical to supersede the law by virtue of superior sanctity inheritance in the principle. हेनरी मैन के अनुसार साम्य मूल नागरिक कानून के पक्ष में विद्यमान नियम का एक निकाय है, विशिष्ट सिद्धांतों पर स्थापित और उन सिद्धांतों में निहित श्रेष्ठ प्रवर्तित के
आधार पर कानून का उल्लंघन करने का समान रूप से दावा करना। According to study, equity jurisprudence may be properly be said to be that portion of remedial justice which was exclusively administered by court of equity and distinguished from that portion of remedial justice which was exclusively administered by court of common law। स्टोरी के अनुसार साम्य न्याय शास्त्र के उपचारात्मक के उन हिस्सों के लिए उचित रूप से कहा जा सकता है न्याय जो विशेष रूप से साम्य के अदालतों द्वारा प्रशासित किया गया था, जिसके उपचारात्मक न्याय के उस हिस्से से अलग है जो विशेष रूप से सामान्य कानून की अदालतों द्वारा प्रशासित किया गया था। According to Henry Ullman, equity is a body of rule, the principal source of which was neither custom nor a written law, but the imperative dictates of conscience and which had been set forth and developed by court of chancery। हेनरी लेवी उल्मन के अनुसार साम्य नियमों का एक न्यायिक है जिसकी प्राथमिकता का सोर्स ना तो प्रथा थी और ना ही लिखित कानून, बल्कि अंतरात्मा के अनिवार्य आज्ञाएं थी और जिन्हें चांसली के न्यायालयों में निर्धारित और विकसित किया गया था। According to Blackstone, as soul and spirit of all law, positive law constituted and natural law is made by it। In this equity is synonymous with justice is that it is true and sound interpretation of the rule। ब्लैकस्टोन के अनुसार सभी कानून और आत्मा के रूप में कानून का अर्थ लगाया जाता है और प्राकृतिक कानून इसके द्वारा बनाया जाता है। इसमें समता का न्याय का परिचय है, इसकी सत्य एवं शुद्ध व्याख्या है नियम। इन रंगा राव वर्सेस रामचंद्र राव AIR 1941, Wordsworth's justice defined equity as equity means a claim to the imposition of court of chancery and no less equity because said chancery is sought to protect a legal right। Thus, taking into consideration various definitions, this becomes quite clear that equity is now that body of rule administered by the English Court of Justice which before the operation of Judicature Act 1873 were administered only by those courts which were known as Court of Equity। रंगा राव बनाम रामचंद्र राव AIR 1941 में जस्टिस वर्ड्सवर्थ जे ने साम्य का अर्थ है दावा की अदालत के अधिरोपण चांसली और यह कोई काम इक्विटी नहीं है क्योंकि उक्त चांसलरी एक कानून अधिकार की रक्षा के लिए मांगी गई है। इसी प्रकार विभिन्न परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इक्विटी अब अंग्रेजी न्यायालय द्वारा प्रशासित नियम का वो निकाय है जो न्यायिक अधिनियम 1873 से संचालन से पहले केवल उन न्यायालयों द्वारा प्रशासित किया जाता था जिन्हें साम्य कोर्ट के रूप में जाना जाता है। We can further add that equity is founded on natural justice। साम्य प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। It is a body of rule and principle which exists side by side with the original civil law।
यह नियमों और सिद्धांतों का समूह है जो अस्तित्व में है नागरिक कानून के साथ साथ। इट इज द सोल एंड स्पिरिट ऑफ लॉ। यह कानून की आत्मा है। यह इट डज नॉट सुपरसीड द एग्जिस्टिंग लॉ बट इट इज अ एडिशन टू सच लॉ। यह मौजूदा कानून का स्थान नहीं लेता लेकिन यह कानून के अंतर्गत है।